is 9? Prasoon, I have 6 natural numbers. Okay? I have these 6 natural numbers. Now I want you to choose any 3 of these. Any 3. कोई भी 3 choose कर सकते हो. So I will call these numbers Prasoon's number. And Garv also wants to volunteer, so the other 3 numbers will be Garv's numbers. Prasoon, write in the chat box which 3 numbers you want to choose. Come on, tell me. Prasoon. Prasoon, you have to choose 3 numbers out of these 6 numbers. Or Garv, you can also do that. Come on. Garv is saying 1 to 5. Okay, okay. So Garv is taking 1, 2 and 5. ध्यान से देखना भैया, मैं गर्व के नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं. हाँ, प्रसून. Prasoon, what is left for you? Obviously now you don't have a choice because Garv already selected 1 to 5. So what is left for you? It is 3, 6 and 1. Yes. But मैं Prasoon के numbers को descending order में लिख रहा हूं. So it is 6. You cannot choose 1 Prasoon, no. Because Garv has already selected 1. Now the 3 remaining numbers are for you, right? So it is 6, it is 4 and this is 3. Okay. So guys, out of these 6 natural numbers, Prasoon has selected 3. I mean, Garv has selected 3 and 3 are left for Prasoon. Now in the next step, I have arranged these numbers in ascending order. Garv's numbers are in ascending order and Prasoon's are in descending order. Now, take these numbers one by one. Inko lo. And find the difference of 2 numbers at the same position. When I say difference, then difference has to be positive. I mean, don't write 3 minus 5 minus 2. In mathematics, when I use the word difference, the difference of 2 numbers is always considered to be positive. So there is a modulus function which I will tell you later in the course. But right now, in plain language, whatever the subtraction of these 2 numbers is, you write a positive value, a positive difference. So Garv is saying 5 to 2, alright. So Garv, first difference kya hoga? 5, yes. 4 and 2, it is 2. 3 and 5, so it is 5 minus 3, it is again 2. And if you add all these differences, the answer is right over there. It is 9. जो कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था. मैजिक. Are you finding it strange or it is obvious? Because these 3 numbers were randomly selected by Garv, 1 to 5. I didn't ask him to, and because ये 3 numbers जब Garv ने select कर लिए, तो Prasoon के पास तो ये 3 numbers की choice थी. I just arranged these numbers in ascending and descending order. So these 3 can be any numbers, right? Any of your choice out of 6 numbers. But the difference remained 9. If you want to repeat this, okay, this time, Prasoon, you choose 3 numbers, any 3 numbers. Prasoon, choose 3 numbers. And be quick this time, before Garv this. 4, 5, 6, okay. 4, 5, 6. So 4, 5, 6 this time, चलो जो Prasoon के numbers हैं उनको हम लोग ascending order में arrange करते हैं. 4, 5 and 6. And then Garv's remaining numbers जो भी हैं उनको हम descending order में रख रहे हैं. Once again, if you take
The reason might be arranging in ascending and descending order. Yes, yes. Ascending and descending order is a reason, but we need to elaborate more why this difference is always 9. Because once again, if you subtract, if you look at the difference of these numbers, it is 1 and then 3 and then 5. So numbers are changed. You can see 5 is okay, 2 and 2. Now this time it is 1 and 3. But the sum of the differences is again 9. This is today's magic trick for you. Why is this happening? Because the numbers taken in the order. Numbers taken in the order. You know, I could have taken any 6 natural numbers, and yes, the sum of the differences will change, but it will remain constant for any choice of 6 natural numbers. So the numbers I have taken 1, 2, 3, 4, 5, 6 purposely छोटे numbers थे, उनको कैलकुलेट करना इजी रहता. सो नंबर्स जो मैंने चूज किए हैं, यस नेचुरल नंबर्स हैं, उनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा, सब कुछ ठीक है. बट द क्वेश्चन इज व्हाई दिस डिफरेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट. नो मैटर व्हाट 3 नंबर्स यू विल चूज, द नंबर्स नीड टू बी कंसेक्यूटिव. नो, इट इज नॉट. कंसेक्यूटिव नहीं होगा तो भी चलेगा. So what is happening? Anyone? What is happening? In upper side you have taken descending, and yes. First time the numbers were descending and here numbers are ascending. Second time numbers are ascending, Prasoon's numbers were ascending, and Varun, Garv's numbers are descending. So they are sorted in opposite manners. If first one is in ascending order, then the other one is in descending order. Both numbers are sorted in 2 different manners. Only 2 possibilities are there. Right? So for a person with no mathematics background, it all appears to be magic. But you know, it is very simple. It is very simple to understand that if you take these 3 numbers, the first 3 numbers 1, 2, 3, and the last 3 numbers, what is the difference of their sum? Look, 1, 2, 3, it is 6. And what is the sum of these numbers? 6, 5, 11, 4, 4, 15. And what is the difference of these 2? Answer is 9. Did you get it? The last 3 numbers, 4, 5 and 6, the sum of these numbers is 15. The first 3 numbers, sum of these numbers is 6. The difference is 9. Now this is a hint to the solution of this problem. Why answer is always 9? Because straight away आप ये नहीं कह सकते हो कि somebody is choosing 1, 2, 3, somebody is choosing 4, 5, 6. This happened. By chance it happened when Garv was selecting, Prasoon was selecting numbers. He selected 4, 5, 6. But every time it is not going to happen, right? He could have selected 1, 2, 5. He could have selected 1, 2, 7. 1, 2, 6. So selections 3 number कुछ भी होगा. But my hint for you is that look at the sum of these 3 numbers, 4, 5 and 6. Look at the sum of these 3 numbers, 1, 2 and 3. The difference of these sums is always 9. So why every time the difference comes out to be 9? Can you decode it? Can you tell me? क्या हो रहा है? तुमने एक और चीज नोटिस की. तुमने नोटिस किया कि दोनों ही एग्जांपल्स में व्हेन आई एम पेयरिंग द 2 नंबर्स, जब मैंने यहां देखो पेयरिंग की है 3 and 5, 4 and 2, 6 and 1. So did you
in descending and ascending will give 6 minus 1 is 5. So Prasoon is trying to say that every time this 5 will appear. Prasoon, you could be wrong, because if 6 and 1 are in different groups, then it is bound to happen. Suppose I have selected 1, 2 and 6, तब तो 5 नहीं आएगा ना प्रसून. नाइस ट्राई, तुमने अच्छा ट्राई किया. प्रसून इज सेइंग कि भाई एक नंबर किसी ने 1 चूज कर लिया तो इस सॉर्टिंग में 1 सबसे पहले आएगा, और अगर उस बंदे ने 6 को सेलेक्ट नहीं किया है तो 6 जो है वो तो फिर दूसरे ग्रुप में जाएगा, एंड 6 विल बी द फर्स्ट नंबर देयर, बिकॉज यहां पर हम डिसेंडिंग में जाएंगे अगर यहां पे असेंडिंग जा रहा है. सो दिस डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन 5. इट इज ट्रू, बट अंडर द कंडीशन that 1 and 6 both are not selected in first group. अगर ऐसा होता है तो ऋत्विक, नो नो नो, नंबर्स नीड नॉट टू बी कंसेक्यूटिव. नो, नंबर्स अगर कंसेक्यूटिव नहीं है तो भी ये ट्रिक काम करेगी. द सम विल बी डिफरेंट, ये सम डिफरेंट हो सकता है. Parth is saying as we're always subtracting smaller number from bigger number, we'll get 15 minus 6. Parth, yes, yes. So I was pointing towards these pairings. It is not that simple. देखो, तुम लोग बिल्कुल सही जा रहे हो. Swagatam is saying, if we are arranging 6, 5, 4, 3, 2, 1 in addition and subtraction, we are taking difference as positive. We always have the same series. All of you are saying the right thing. सब कुछ सही, सभी लोग सही बोल रहे हो. बट अभी भी एक चीज ड्यू है, और वो ये एक्सप्लेन करना कि जो डिफरेंस हम ले रहे हैं, इट इज ऑलवेज 1 नंबर फ्रॉम सेकेंड ग्रुप 4, 5, 6 एंड 1 नंबर फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप 1, 2 एंड 3. सो लुक एट दिस एग्जांपल 3 एंड 5. डिड यू सी कि 3 जो है वो हमारा फर्स्ट ग्रुप से आ रहा है और 5 जो है वो हमारा सेकेंड ग्रुप से आ रहा है. इट इज नेवर दैट यू हैव 2 नंबर्स फ्रॉम द सेम ग्रुप. Let's call this group alpha group. ये alpha group है हमारा, where we have numbers less than 3 or less. And let's call this group beta group, where we have numbers which are greater than 3. So look at this random selection of 3 numbers. Garv took 1 to 5. Prasoon is left with 6, 4, 3. This is all random, right? But if you pair these two numbers, Prasoon is having 3 from alpha, 5 for Garv from beta. 4 and 2, look, 4 is here and 2 is here. 6 and 1, 6 is here and 1 is here. 3 cannot be paired with 2 and 1 as we are arranging them in yes path. Very nice, very nice. So the key, the solution to this problem is, it lies within that. We will never take difference of any 2 numbers falling in same group. कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें 3 minus 2 करने को मिले, 3 minus 1 करने को मिले, या फिर 5 minus 4, 6 minus 5. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अगर तुम्हें और बेटर एक्सप्लेनेशन चाहिए, देखो, सपोज मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, A1 greater than A2 greater than A3. These are 3 numbers out of 1, 2, 3, 4, 5, 6 in the first group, where we have arranged them in descending order. The remaining numbers A4, A5 and A6, and these 3 numbers are arranged in ascending order, descending and ascending. As numbers we arrange in ascending, descending order, so definitely 1 and 2 won't be pairs. Yes, 1 and 2 will never be pairs. Now I will try to show you why it is not possible that we cannot pair 2 numbers from same groups. If the 2 numbers are coming from alpha or beta, they cannot be paired here. For example, assume करो कि यहां पर आ जाता है suppose 4. Suppose this is 4 and this is 6. For the time being, let's assume ये 4 है और ये 6 है. 4 and 6 are in the same group. All right. Now I have to choose 2 numbers greater than 4. Remember, the sorting
ये जो अरेंजमेंट था ये डिसेंडिंग था. बट वी डू नॉट हैव टू नंबर्स. वी डू नॉट हैव टू नंबर्स greater than 4 because we have already used 6. Are you getting this? 6 नहीं, मैंने अगर मान लो यहां पर 5 चूज किया होता, again the same problem will come because I want two numbers greater than 4. 5 is already used, we cannot do that. So it is bound to happen that if 4 appears here, अगर 4 यहां पे आता है तो यहां पे 5 और 6 नहीं आ सकता because 5 and 6 फिर यहां पे मैंडेटरी हो जाते हैं. Are you getting this? Few must and few may argue कि चलो ठीक है 4 यहां पे था, 5 यहां पे था, आपने एक्सट्रीम ले लिया. What if these two come in middle? चलो वो भी करके देख लेते हैं. Suppose 4 यहां पे आ रहा है और 5 यहां पे आ रहा है. All right. Now, sir, alpha group, Prasun is saying a number will be lowest in beta, so either way, yes, very nice, Prasun. So once again, look at this example. If I keep 4 here and 5 here, I need one number which is greater than 4 on its left, but at the same time I need one number which is greater than 5 on its right. So I need two different numbers. But you know, we do not have two numbers because after 4 and 5, we have only one possibility, which is 6. So it is not possible that if you randomly select 3 numbers, the other 3 numbers, if sorted in opposite manner, the pairing will never fall in the same group. If you will take one number from alpha, the other number will always come from beta, and now you can see the difference of, now you can pair it any manner you want to. 4 minus 1, 5 minus 2, 6 minus 3, which happens in second case. In first case, you can see 6 minus 1, 4 minus 2, 5 minus 3. So whatever you do, actually you are subtracting the sum of numbers in beta from sum of numbers in alpha. Alright, so this is today's trick for you. You can impress your friends. अगर तुम चाहो तो ये 6 numbers थे. You could have selected any even numbers. तुम 6 के बजाय मान लो तुमने 8 numbers लिए होते. Can you guess? If I take 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Can you tell me? वो हमारा magical sum जो मुझे वहाँ पे लिखना है right hand side में, वो मैं क्या लिखता? If I would have taken 8 numbers, तो वहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए था? 16. Yes, true. 16. Because 1, 2, 3, 4 alpha group, 5, 6, 7, 8 beta group, and if you subtract, the subtraction भी easy है अगर तुम देखो इसको. 1, 2, 3, 4 and then 5, 6, 7, 8, and while subtracting, go for this. 5 minus 1, 4, 6 minus 2, 4, 7 minus 3, 4, 8 minus 4 is also 4. So 4 into 4 answer is 16. 16 कहीं पे रखना और फिर वो शो कर देना. New age mathematicians, huh? तो हो गया. With this the magic ends. By the way, it is called Praslov identity. The person who suggested, because जो sorting तुम देख रहे हो ना, अब कुछ लोगों ने शायद नाम सुना हो. एक rearrangement inequality होती है, which if you take 10, we will get 25. Yes, Danish, yes. If you will take 10, you will get 25. Correct. So sorting पर based maths में एक बहुत ही बढ़िया principle है, और उस they are squares. Yes, there is a reason the numbers are squares, because you can see the difference is same. So 4 is appearing 4 times, 3 is appearing 3 times, 5 will appear 5 times. Yes, Harshita. So you decoded that if I take 2n numbers, 1, 2, 3, so on to 2n, answer is always n square. That's right. ठीक है. तो रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी के बारे में तुम्हें बता रहा था. अगर तुम ओलंपियाड की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे मैं तुम्हें एक बार फिर दिखाऊंगा कि सॉल्टिंग की हेल्प से अलजेब्रा में भी कई बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किया सकते हैं सॉल्टिंग पर बेस, विच इज वेरी फंडामेंटल, वेरी बेसिक. तो देखना एक बार.
अपने बुक्स में रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी के बारे में. Alright, so let's start the trigonometry part, trigonometric identities part. We were going through graphs and graph plotting. कैसी रही graph plotting भाई? Graph plotting कर पाए या फिर difficulty आ रही है? Because to plot a graph you need these two axes, x and y. For every value of x, Dhruv, what do you want me to show? Graphs? Yes, I will show it. So for every value of x, you will get a corresponding value of y. Yes, and you join the dots, you join these points to make a graph. That's what I want you to do. मुझे कोई बहुत smart methods नहीं चाहिए. And there is an app, very nice app, Desmos. Desmos, अपने ऐप स्टोर पे जाओ, iOS पे जाओ और Desmos को डाउनलोड कर लो. And play with this. Instead of अपना PUBG खेलने के बजाय आप अगर Desmos पे खेलोगे तो बहुत मजा आएगा. सीरियसली उसमें अलग अलग फंक्शंस यूज करो. देखो उनके ग्राफ. अच्छा, उन ग्राफ में कुछ उन फंक्शंस में स्लाइट चेंजेस करो. फॉर एग्जांपल तुमने साइन एक्स ग्राफ बनाया हुआ है, अब तुमने x की जगह पर x स्क्वायर डाल दिया. सो हाउ, व्हाट विल बी द ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट विल बी द चेंज? ट्राई टू नोटिस दैट. यू विल लव इट. सीरियसली ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राफ्स 12th की मैथमेटिक्स में, 11th में मे भी उतना इंपॉर्टेंस ना हो, बट 12th की मैथ्स में ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है ना. तो ग्राफ प्लॉटिंग में हमें कंफर्टेबल होना है. नेक्स्ट 6-7 months वी विल प्लॉट मेनी ग्राफ्स एंड डू नॉट इग्नोर देम. मे बी उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा तुम्हें ना दिखाई दे, बट यू नो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. पूरी कैलकुलस में तुम देखोगे ग्राफ अगर हमने यूज किया तो कैलकुलस क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं. ऑलराइट, सो ग्राफ हमने देखे थे साइन एक्स के और कॉस एक्स के. आई एम गोइंग टू शो यू अगेन. somebody asked me, I think I'm forgetting the name, किसने पूछा था, that I mentioned circular function. मैंने कहीं पर word circle use किया था when I was studying about trigonometric functions. So you asked me that why these functions are called circular functions. What is their relation with circle? If you remember, जो लेक्चर मैंने ग्राफ से जस्ट पहले लिया था या उसके पहले लिया होगा, जहां पे हमने अलाइड एंगल फॉर्मूला के जस्ट पहले जो साइन कन्वेंशन था, देयर यू रिमेंबर देयर वाज अ यूनिट सर्कल. याद है? एक यूनिट सर्कल में ड्रॉ किया था. एंड आई हैव शोड यू दैट इफ आई टेक अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस, join this point to origin, the center of the circle, this is a unit circle, unit radius circle. What will be the coordinates of point P? Do you remember that coordinates of this point will be cos theta comma sin theta? We used it extensively, right? इसको हमने use किया और we derived allied angle formulas using this cos theta comma sin theta. So how a circle is related with cos theta, sin theta, trigonometric functions, that I will show you in this video. You want to see? Look at this video. Our point is moving on the circumference, and here what is happening, we are locating that yellow ball, you can see, with respect to time. You look at the position. Keep it in loop, please. Keep it in loop. If you look at that yellow ball, देख रहे हो ये ऊपर नीचे, ये केवल it is telling you the y coordinate of blue ball. ये येलो बॉल जो है केवल अभी देखो उस जो y एक्सिस पे ब्लू बॉल y एक्सिस पे जो येलो बॉल मूव कर रही है, ये येलो बॉल किस तरीके से मूव कर रही है, ये ब्लू बॉल का केवल y कोऑर्डिनेट तुम्हें बता रही है. राइट? इट गोज डाउन 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 एंड इट गोज अप अप अप. नाउ द ग्राफ इज जनरेटेड. व्हाट इज दिस ग्राफ? कुड यू अंडरस्टैंड द ग्राफ? फॉर दिस ग्राफ, ऑन x axis I am taking time, on y axis I am measuring the y coordinate of that blue ball. So once again, पहले blue ball देखो
और येलो बॉल देखो, ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, blue ball is going up, yellow ball is also going up. Now look at this graph. Look at the yellow ball, the two yellow balls. You can see their height is same, but why this is moving along x-axis? Because obviously you cannot stop time. तो time तो आगे बढ़ेगा ना. In first second, in the very first second, उसकी height ये थी. Second में, third second में, fourth second में उसकी height change हो रही है. It goes right into the bottom, then again goes up. So what this video suggests you, that a sinusoidal wave, what is indicated by this graph? Okay, you look at this circle again. This is a unit circle, and if I tell you the coordinates of point P, you know, for point P, y coordinate is sine theta. Now what is y coordinate? Y coordinate tells you what? Y coordinate tells you the distance of this point from x-axis. Now look at this diagram. Look at that blue ball, circumference पे जा रही है. If it is moving, right? Every time this blue ball moves, its y coordinate is changing. ये जो येलो बॉल तुम्हें y एक्सिस पे दिखाई दे रही है, this yellow ball is suggesting you the y coordinate of blue ball. That you agree? देखो ना, इस blue ball का y coordinate इस yellow ball से हमको मिल रहा है. Now we are trying to plot a graph, और उस ग्राफ को प्लॉट करने का मेथड क्या है कि ये जो x एक्सिस है हमारा, इस पर मैं टाइम लिख रहा हूं. टाइम like we started from 0 second, first second, second second, third, fourth and so on. So x axis पर हमने टाइम मेंशन किया है, and y axis पर, on this y axis we are going to keep the altitude of this ball, or in other words, the y coordinate of point P. Point P is represented by blue ball on this circumference. So you can see 0 second पे वो कहां पे थी? 0 second पे उसका altitude क्या था? 0. First second में ये थोड़ा ऊपर गई, हम यहां पे आ गए. Second second में suppose ये top पे पहुंच गई, फिर third second में नीचे आती है. Fourth second में suppose ये x axis पे वापस आ गई. Fifth second में अब ये नीचे आने लगी. What this graph looks like to you? ये ग्राफ कैसा है? This is nothing but a sinusoidal wave. Why are we getting a sinusoidal wave? हालांकि ये चीज काफी दिनों बाद तुम्हें दिखाई देगी, but this is an answer to the question that why these trigonometric functions are called circular functions. Because all these functions are generated by a circle. ये सारे functions इनका जो you know source है वो एक circle है, एक unit circle है. X coordinate is cos theta, y coordinate is sin theta. Using geometry I can also show you how tan theta is related with this unit circle. So that video, what wave? Sinusoidal wave. Okay, for now you just call it sine function, or the graph of sin x. But this graph appears like sine, right? Do you want to see the graph of sin x once again? Look at these slides. Last lecture में जो हमने slides जहाँ पे finish की थी. Look at this graph of sin x. It is same as this, right? ये graph जो मैंने बनाया है, yes, numbers are different. जहाँ मैंने 2 लिखा है वहाँ पर तुम्हें sin x graph में pi by 2 दिखाई दे रहा है. But these two are similar. What is the name of the wave? Sinusoidal wave. साइन, अच्छा मैं तुम्हें बता दूंगा, अभी भेज दूंगा तुम्हें डॉक्यूमेंट. बट एवरी मोशन विच इज सिंपल, अगर तुम फिजिक्स में जानते हो, एक वर्ड तुमने सुना होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, अ मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन interval of time. So if you try to plot the graph of any simple harmonic motion, it will appear to be a sinusoidal wave. This is going to happen. But anyways, we are not going to move that
बियॉन्ड ट्रिग्नोमेट्री, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री से बाहर नहीं जाते हैं. Look at the graph of y equal to sin x, and now we will revise all the concepts which we have covered in last lecture. So I told you few important points, points to observe for this graph. Not only graph, केवल ग्राफ प्लॉट नहीं करना है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हमें याद रखना है. सो आई मेंशन्ड डोमेन. नेक्स्ट पिक्चर. I mentioned domain. Do you remember what is domain? Do you remember? याद है domain किसको बोलते हैं हम? Domain is the values on x-axis. The values graph will cover on x-axis. The other word for domain is the set of inputs also. So sin x as a function अगर हम sin x को treat करें, so डोमेन इज नथिंग बट द सेट ऑफ इनपुट्स जो तुम x की वैल्यूज में दे रहे हो. देन वी डिस्कस्ड कि ठीक है, साइन x को तुम कोई भी इनपुट दे सकते हो. साइन पाई बाई 2 इज 1, साइन पाई बाई 6 इज हाफ, साइन पाई इज 0. साइन को तुम कोई भी एंगल दोगे, इट विल एक्सेप्ट एनी रियल इनपुट, कोई इशू नहीं है उसको. एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट, डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. व्हाट अबाउट रेंज? What was our second point? रेंज क्या होती है? यू कैन सी इस ग्राफ को देखो. ये ग्राफ जो है हमारा, ये y एक्सिस पर -1 से +1 के बीच में, द एक्सट्रीम्स ऑफ द आउटपुट्स. वेरी नाइस. सो व्हेन आई से रेंज, अच्छा रेंज इट कम्स वेरी नेचुरल टू अस ना, कि भाई ये मिसाइल है, अभी इसरो ने बनाई और उसकी रेंज है 100 किलोमीटर्स. तो रेंज 100 किलोमीटर से, इसका मतलब क्या? -100 +100 डायरेक्शन कोई भी दे दो उसको, बट 0 to 100 किसी भी टारगेट को वो हिट कर सकती है. दैट इज रेंज, राइट? सो व्हेन आई से रेंज ऑफ sin x इज -1 to 1, आई एम टॉकिंग अबाउट इट्स आउटपुट. आई एम टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज ऑफ y. आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यूज which are on y axis. Look at this graph and see what are the values it covers on y axis. देखो ना, ये बहुत नीचे गया ग्राफ तो -1 तक गया है. -1 के नीचे ये कभी नहीं जाएगा. और अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऊपर जाता है, और देखो ये +1 के ऊपर जा ही नहीं सकता. सो इट इज नॉट ओनली -1 एंड +1, इट इज एक्चुअली ऑल द वैल्यूज बिटवीन -1 एंड +1, इंक्लूडिंग बोथ. सो व्हाट इज द रेंज ऑफ sin x? Range of sin x is from -1 to 1, all real numbers. And in the second point you can see we have used square brackets. So this is called method of interval, जहां पर it is a way of representation. हम बस ये यहां पे बताना चाहते हैं कि we are taking all numbers between -1 and 1 also, including -1 and 1. तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब केवल इतना है, ठीक है? The period of this function is 2 pi. What is period? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि after a constant interval, the graph will repeat itself. And you know, after 2 pi, after 360 degrees, every trigonometric function is going to repeat. Why? Because after one full rotation, we will get back to same angles. After 2 full rotations, we will get back to same angles. And that is why sine ho, cos ho, tan ho, kuch bhi ho, after 360 degrees it has to repeat. Period is the shortest such interval. For sin x it is 2 pi. All right. Fourth point was monotonicity. Now what is monotonicity? Monotonicity, I explained it to you in the last lecture. Monotonous life बहुत ही monotonous हो गई है लॉकडाउन में. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई एक ही काम करते जा रहे हैं. वी आर इन द सिंगल टोन. इफ वी आर सैड देन वी आर सैड, वी आर हैप्पी वी आर हैप्पी. तो मोनोटोनस वर्ड से ये मोनोटोनिसिटी यहां पर यूज किया है मैथ्स में वर्ड, और इसका मतलब है द नेचर ऑफ द ग्राफ. द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग. यू कैन सी साइनस का जो ग्राफ है यहां पर पाई बाई 2 तक इंक्रीज करता है. पाई बाई 2 पर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, एंड पाई बाई 2 के बाद इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, goes to -1. Then again it -1 तक डिक्रीज करने के बाद it again increases.
So if I ask you in what intervals, in what better word hoga quadrants, in what quadrants the graph of sin x increases, then your answer is 0 to pi by 2, the first quadrant, and then you can see second quadrant mein graph decrease kar raha hai, pi by 2 to pi. Pi to 3 pi by 2 फिर graph decrease कर रहा है, but after 3 pi by 2 graph starts to increase, graph increase कहने लगता है. And the fifth point is just an already mentioned. ये इसलिए कर दिया है कि तुम्हें कुछ questions में इस information की जरूरत पड़ सकती है. So the graph of sin x, if you plot the graph of sin x, y equals to x is a straight line. Y equals to x, this straight line will touch the graph of sin x at origin. That you can prove also. अगर तुम्हें फिजिक्स में थोड़ी बहुत भी कैलकुलस समझ में आ गई होगी, तुम्हें यह समझ में आया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन gives you slope of the tangent at the given point, right? So you can very easily prove that y equals to x is a tangent to sin x at origin. So these were those 5 key points. इन पांचों पॉइंट्स को फिर से एक बार समझ लो, देख लो, क्योंकि उसके बाद मैंने तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए थे. In the next picture, yes, so we were trying to solve these 5 problems, out of which first, second, third के ग्राफ्स मेरे पास आ गए. I received almost 10 or 12, about 10 मैसेजेस मुझे मिले हैं 10 बच्चों के, और उन्होंने ग्राफ बिल्कुल सही प्लॉट किया है. सो आई होप बाकी लोगों ने भी ग्राफ प्लॉट कर लिया होगा, भेजा नहीं होगा, कोई बात नहीं. सो होमवर्क ग्रुप में भी सबके तो नहीं आए हैं, बट ठीक है. तो ये 3 ग्राफ्स जो मैंने प्लॉट करने को कहे थे, फिर एक बार व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 5 पार्थ? यस, विल कम बैक टू क्वेश्चन 5, वेट फॉर इट. फॉर क्वेश्चन 1, y equal to sin 2x. So what I wanted, I want you to plot these points. x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 30 डिग्रीज है तो y की वैल्यू क्या होगी. इन पॉइंट्स को प्लॉट करके तुम्हें ग्राफ को प्लॉट करना है. एंड देन यू कैन चेक, यू कैन वेरीफाई योर ग्राफ यूजिंग डेस्मॉस, यू कैन आस्क मी ऑल्सो. सो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस वर अबाउट प्लॉटिंग ग्राफ्स, एंड फोर्थ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड. हमने फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था. इफ यू वांट आई कैन सॉल्व दिस अगेन. डू यू वांट me to explain it again? Question number 4, फोर्थ क्वेश्चन फिर से देखना है क्या? इसको शिफ्ट करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन जो है, सिमिलर क्वेश्चन जो है वो जे एडवांस्ड में कभी आ चुका है. तो देखो, सपोज वी आर नॉट टेकिंग ऑल द वैल्यूज फ्रॉम sin 1 to sin 6. सपोज आई एम टेकिंग ओनली sin 1 and sin 2. I want to compare sin 1 with sin 2. When I say sin 1, and if I am not mentioning degrees, that means I am taking these angles in radians. So what is the method to compare sin 1 and sin 2? I told you there is a graphical approach. Yes. क्या है हमारी graphical approach भाई? चलो हम एक बार sin x का ये ग्राफ बनाते हैं. ये रहा हमारा sin x का कंप्लीट ग्राफ नहीं, मैंने ये ग्राफ केवल 0 से पाई तक, पाई इन डिग्रीज 180 डिग्रीज तक का ग्राफ बना दिया. जहां पर ये पीक हमको मिल रही है, द मैक्सिमम वैल्यू, इट इज एट पाई बाई 2. व्हाट इज साइन पाई बाई 2? साइन पाई बाई 2 इज 1. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. देन हाउ डिड वी प्रोसीड? Now I try to locate 1 on x axis. X axis पर ये 1 कहां पर आएगा? X axis पे 1 देखो, pi by 2 is very close to 1.57. Pi by 2 3.14 divided by 2, 1.57 से बहुत क्लोज है. So if you try to locate 1, देखो 1 कहीं यहां पे आएगा, राइट? pi by 2 से पहले, और 2 जो है वो pi by 2 के बाद आने वाला है. ये भी क्लियर है? बिकॉज पाई बाई 2 और पाई के बीच में 2 है. अब साइन 1 क्या होगा? तो आई थिंक ये चीज सबको समझ में आनी चाहिए. दिस लेट्स कॉल दिस पॉइंट P, लेट्स कॉल दिस पॉइंट Q,
इफ आई आस्क यू व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? बिकॉज दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू साइन x. तो क्या होगा? क्या होगा? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई? x कोऑर्डिनेट इज 1, देखो ना, x कोऑर्डिनेट इज 1, एंड व्हाट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P? पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? If x coordinate, if input is 1, what will be the output? Yes, Matthew. Yes, Danish. Very nice. It is sine 1. It is sine 1. And you know why? What is y coordinate? This length. This algebraic length is sine 1. Similarly, if I ask you, what will be the coordinates of point Q? Q के coordinates क्या होने चाहिए? Answer is 2, sine 2. So comparing sine 1 with sine 2 means we are trying to compare these two lengths. हम ये दो lengths compare कर रहे हैं. तो अब ये बताना, तुम लोग बताओगे कि इन दोनों में से कौन सी लेंथ बड़ी? क्या ये Q का y कोऑर्डिनेट है या P का y कोऑर्डिनेट है? कौन सी लेंथ बड़ी होनी चाहिए और क्यों? हालांकि डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, बट स्टिल लेट्स ट्राई इट वंस अगेन फॉर दोज हु कुड नॉट कॉम्प्रिहेंड इट. Q as it is closer to pi by 2. Very nice. Look at the symmetry of the graph. हमको साफ समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है, ये वो पॉइंट है जिसपे ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू अचीव होती है, विच इज 1. At pi by 2, sine will take its maximum value. Because of the symmetry of the graph with respect to this line, हम pi by 2 के जितने क्लोज आएंगे फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, साइन की वैल्यू उतनी ही बड़ी मिलेगी. तो आई थिंक नाउ इट इज वेरी ऑब्वियस कि 1 और 2 में y कोऑर्डिनेट, p और q में y कोऑर्डिनेट उसका बड़ा होना चाहिए जो पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट pi by 2 से क्लोजर होगा. एंड यस, यू कैन सब्ट्रैक्ट 2 minus pi by 2. 2 minus 1.57 is 0.43. 1.57 minus 1 is 0.57. तो हालांकि डिस्टेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कंपेयरिंग टू p, q is closer to pi by 2. And that is why sin 2 must be greater. sin 2 को बड़ा होना चाहिए. So that explanation I think should be well understood. अब तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए why sin 2 is greater than sin 1. And similarly अब sin 3 तो obvious हो जाता है. अगर हम 3 पे गए, now 3 is very very close to pi. 3 is very very close to pi. तो हमको पता है कि अगर मैं पूछूंगा sin 3, अगर मैं पूछूंगा अप्रॉक्सीमेटली बताओ, तुम बताओगे sin 3 की वैल्यू ठीक है, बहुत ही क्लोज टू 0 होगी, छोटी वैल्यू होगी. sin 3 इन दोनों से ही छोटा होना चाहिए ना. सो हम पाई बाई 2 के जितने क्लोज जाएंगे वैल्यू उतनी बड़ी होगी, 0 पाई 2 पाई के जितने क्लोज जाएंगे उतनी वैल्यू छोटी होगी. सो दिस इज आवर ग्राफिकल अप्रोच. बट कैन यू गिव मी एन ऑल्टरनेट अप्रोच? क्या तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, सेम क्वेश्चन, इफ आई वांट टू कंपेयर sin 1 एंड sin 2 एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग ग्राफ, कैन यू सॉल्व इट? कैन यू गिव मी एन ऑल्टरनेट अप्रोच? कैसे तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे विदाउट ग्राफ? अगर ग्राफ यूज करना अलाउड नहीं है, बट ग्राफ के जो भी ऑब्जर्वेशंस थे हमारे, वो हम यूज कर सकते हैं. डोमेन, रेंज, मोनोटोनिसिटी या फिर कोई भी पॉइंट जो मैंने लिखा था वो तुम यूज कर सकते हो. सो विदाउट यूजिंग ग्राफ्स, कैन यू कंपेयर sin 1 विथ sin 2? Take your time. Take your time. By the time we will clean the board, and you can give me your response in the chat box. Tell me, how will you compare sin 1 with sin 2 without using graph? तो ग्राफ पर देखकर इस बार ये काम नहीं करना है. You can do all calculations, you can use any observation of the graph, वो तुम यूज कर सकते हो, बट ग्राफ
एग्जैक्टली प्लॉट करके आंसर नहीं देना है। एनीवन? इतना डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए भाई, हाँ? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अच्छा, अगर मैंने बोला था साइन 1 एंड साइन हाफ, साइन 1 एंड साइन हाफ विच इज ग्रेटर, तो क्या तुम्हें ग्राफ की जरूरत पड़ती? विच वन इज ग्रेटर, साइन 1 और साइन हाफ? क्या हमको ग्राफ की जरूरत पड़ती? साइन 1 इज ग्रेटर। ध्रुव, वादविक, नो, हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों हमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती? साइन 1 और साइन हाफ को कंपेयर करने के लिए ग्राफ की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? या फिर और भी सिंपल एग्जांपल, मैं तुम्हें कंपेयर करने को बोलता हूं साइन 7 डिग्रीज एंड साइन 9 डिग्रीज, किसकी वैल्यू बड़ी होगी? विच वन इज ग्रेटर, साइन 7 डिग्रीज और साइन 9 डिग्रीज? आंसर इज 9 डिग्रीज। यस दानिश, यस आद्विक, बट आंसर इज साइन 9 डिग्रीज। हमने बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए कैसे बोल दिया? दानिश, व्हाट इज द रीजन why sin 9 degrees is greater than sin 7 degrees? हमें किसी ग्राफ की कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली कैसे बोल दिया? Because it is increasing in first quadrant. Very nice. Sin 1 is greater than sin half because we know it is increasing. Very good Sangamitra. Amog, value of sin increasing for, very nice. सभी के आंसर बिल्कुल सही है। हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज करता है और दोनों ही एंगल्स, या जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पूछे, 1 हाफ या फिर 7 डिग्री 9 डिग्री, ये सारे एंगल्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बट इफ द क्वेश्चन चेंजेस टू साइन 1 एंड साइन 2, साइन 1 और साइन 2 में एक प्रॉब्लम आ जाती है। साइन 1 और साइन 2 में प्रॉब्लम ये है, when you are comparing sin 1 with sin 2, 1 and 2 are not lying in the same quadrant. 1 lies in the first quadrant between 0 and pi by 2, and 2 lies in second quadrant, right? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है कि ग्राफ का जो नेचर है वो चेंज हो जाता है। ग्राफ की जो मोनोटोनिसिटी है वो चेंज होती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पे साइन इंक्रीज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज करता है। तो हमें इसीलिए ग्राफ यूज करना पड़ा, हमें देखना पड़ा कि वो जो पाई बाई 2 वाली लाइन है उसके कितने क्लोज हैं। बट कैन वी चेंज दिस क्वेश्चन टू द प्रीवियस क्वेश्चंस व्हाट वी वर डिस्कसिंग, लाइक कंपेयरिंग साइन 1 विद साइन हाफ, comparing sin 7 degrees with sin 9 degrees. I want to solve this question without using graph. And you know it is possible if these two angles lie in same quadrant. अगर ये दोनों एंगल्स एक ही क्वाड्रेंट में आ गए तो हमारा काम हो जाएगा, बिकॉज हमको पता होगा कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इनपुट बड़ा है तो आउटपुट बड़ा होगा। अगर हमको ये पता होगा कि ये दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो जो इनपुट बड़ा होगा उसका एक्चुअली आउटपुट छोटा होगा, बिकॉज ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। बट साइन 1 और साइन 2 फिलहाल 1 और 2 सेम क्वाड्रेंट में नहीं है। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इफ यू कैन ब्रिंग दिस वैल्यू इन द सेम क्वाड्रेंट। अब एंगल 2 को तुम चेंज करके फर्स्ट में ला नहीं सकते, बट कैन वी डू समथिंग विथ साइन 2? थिंक, क्या साइन 2 के साथ कुछ ऐसा किया जा सकता है? They would be in first. No, they are not in first. 1 and 2 are not in first quadrant. 1 between 0 to pi by 2 and 2 radians में है ये। 1 is very close to 57 degrees, remember? 57 into 2, it is an obtuse angle, 90 से बड़ा हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में है, राइट?
So 1 and 2 are not in same quadrant. How can you bring them in same quadrant? कैसे? Think, सोचो. Hint चाहिए, hint. Hint है allied angle formula. Sine 2 is 1.57 plus 0.43 minus something. What minus something? Come on. Do you remember that sine 2 is also equal to sine pi minus 2? Sine theta and sine 180 minus theta is same. याद है? याद है ना? Pi minus 2 is approximately कितना? What is pi minus 2? Pi minus 2 approximately कितना आ रहा है बताओ? 3.14 minus 2. Approximately 1.14? Yes. So, which value is greater? Is it 1 or pi minus 2? कौन सी value बड़ी है? Obviously 1 is less than pi minus 2. And the second special thing is कि ये जो 1.14 है और ये जो 1 है, they both belong to same quadrant. कौन से quadrant में है दोनों भाई? Both are in first quadrant. How did I say that? Pi by 2 is 1.57. Both are less than 1.57. तो आ गए दोनों same quadrant में, first quadrant में. और first quadrant में क्या होता है? The plane takes off. Sin x increase करता है. तो greater input, the greater output, smaller input, then smaller output. Obviously, sin 1 की value sin pi minus 2 से कम होनी चाहिए, right? And we know, okay Dhruv, once again, 1 and 2 are not in same quadrant, right? हमको पता है कि 1 और 2 same quadrant में नहीं है. But do you agree that 1 and pi minus 2 are in same quadrant? 1 और pi minus 2 same quadrant में है. If you look at the graph again, हालांकि कंडीशन ये थे कि ग्राफ यूज नहीं करना है, बट चलो ठीक है, मैं ग्राफ बना के तुम्हें दिखाता हूं कि अगर ये sin x का ग्राफ है, दिस इज पाई बाई 2, तो अगर 1 यहां पर है तो 2 यहां पर है. 1 and 2 are not in the same quadrant. But what about pi minus 2? Pi minus 2 is approximately 1.14. Pi minus 2 कुछ यहां पे आ गया, right? This is pi minus 2. 1 and pi minus 2 are in the same quadrant where the graph is increasing. The graph increases. And now we can compare them directly because हमको पता है कि जो वैल्यू बड़ी होगी, जो एंगल बड़ा होगा, उसका आउटपुट भी साइन का बड़ा होगा because we are in first quadrant. So sin 1 is going to be less than sin pi minus 2, and you know the formula, sin 180 minus theta. Sin 180 minus theta is sin theta, so it is sin 2. We have proved that sin 1 is less than sin 2 without using, you're mixing it. Okay, fine. Alright, so that is how you are going to solve these type of questions. कि यार sin 1, sin 2, sin 3, sin 4, sin 5, sin 6 में किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है, किसकी वैल्यू सबसे छोटी है, you can compare them all. And then comes the last question, question number 5. Question number 5. How will you solve question number 5? Question number 5 solve करने के लिए let's write this equation. Question 5. What is the equation? It is 3 sin x equals to x. How to do sin 6 using allied angle formula? Okay. चलो करते हैं, sin 6 ट्राई करते हैं. चलो भाई, अमोक के क्वेश्चन का आंसर दो.
Which two values you want to compare, Amog? Sin 6 with which value? Amog, with sin 6, you want to compare which value? Try to take a value which is not in the same quadrant. Same quadrant में ना हो तो अच्छा होगा ना. So you want to compare sin 6 with what? Remember, sin 6 is negative. याद है ना? 6 जो था 1 and 6. Amok 1 is in first quadrant, sin is positive. 6 comes in fourth quadrant, sin is negative. तो कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है ना. ऑब्वियसली sin 1 जो है वो sin 6 से बड़ा है. लेट मी हेल्प यू. मैं तो बताता हूं कि अच्छा बिफोर वी सॉल्व दिस क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सर ये पिक्चर रही है इसको. लेट्स कंपेयर sin 4 एंड sin 6. sin 4 एंड sin 6 कंपेयर करते हैं. ठीक है मोक. sin 4 और sin 6 मैंने क्यों चूज किया? बिकॉज देखो ना, ग्राफ अगर मैं sin x का बनाऊं, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x. 0 pi 2 pi, this point where sin takes its minimum value is 3 pi by 2. What is 3 pi by 2 approximately? 3 pi by 2 approximately is 1.57 into 3. It is approximately 4.7. अभी 4 कहां पे आ रहा है? 4 कहां पे आएगा भाई? 4 आएगा यहां पे कहीं. यहां कहीं 4 आता है. 3.14 और 4.7 के बीच में. और 5 कहां पर आएगा? 2 pi is approximately 6.28. तो 5 डेफिनेटली कहीं यहां पे आएगा. So I took two angles. मैंने 2 एंगल लिए जो सेम क्वाड्रेंट में नहीं है. You agree? 4 lies in third quadrant, 5 lies in fourth quadrant. 3 pi by 2 से 2 pi. I want to compare sin 4 and sin 4 and sin 5 करते हैं. 6 क्योंकि फिर बहुत ऑब्वियस हो जाएगा. ठीक है. sin 4 and sin 5. अब ग्राफ देखकर आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा कि आंसर क्या है. विच वैल्यू इज ग्रेटर? विच वैल्यू इज ग्रेटर? इस बार 3 pi by 2 पर लीस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है. तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जितना हम क्लोज जाएंगे 3 pi by 2 के, sin 4 is greater than sin 4 is greater than sin 5. Very nice. Because 5 is closer to 4.7. डिफरेंस देखो 0.3 है. जितना हम क्लोज जाएंगे 3 pi by 2 के, वैल्यू उतनी ही मैग्नीट्यूड में बढ़ेगी, बट नेगेटिव होगी तो छोटी होती जाएगी. तो ग्राफ देख के क्लियर है कि भाई sin 4 जो है sin 5 से बड़ा है. sin 5 is in fourth. Look, sin 5 I can understand the feelings कि क्या बोलना चाहते हो, but the statement is not correct. 5 is in fourth quadrant. Don't say sin 5 is in fourth quadrant. 5 as an angle lies in fourth quadrant. 4 as an angle in radians lies in third quadrant. Now we are sin 4 and sin 5 are just two values. हम केवल 2 वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं. यस आद्विक, आई एम टेलिंग यू. वेट. अब इस क्वेश्चन को अगर मैं ग्राफिकली सॉल्व करूं, मैंने सॉल्व कर दिया. मुझे पता है कि जो sin 4 है वो sin 5 से बड़ा है, बिकॉज नेगेटिव है बट मैग्नीट्यूड में कम है. बट इफ आई वॉन्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग दिस मेथड, अलाइड एंगल फॉर्मूला, हाउ विल आई डू दिस? बताओ क्या करूं. मैंने वहां पे पाई माइनस थीटा क्यों यूज किया था? बिकॉज पाई माइनस थीटा ब्रॉट पाई माइनस 2 टू फर्स्ट क्वाड्रेंट. जो 2 लिखा हुआ था वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, उसको वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आता है. कैन यू ब्रिंग बोथ 4 and 5 using any allied angle formula? Can you use any allied angle formula to bring 4 and 5 both to first quadrant? देखो 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ ही नहीं सकता, बट क्या कुछ ऐसी ट्रिक यूज करके पाई माइनस थीटा, है ना, पाई प्लस थीटा, कुछ भी ऐसा यूज करके कैन यू ब्रिंग देम इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनटू सेम क्वाड्रेंट? कुछ ऐसा यूज कर सकते हो? यस, देन टेल मी.
what you are going to use? Tell me. क्या यूज करोगे? I want you to use any allied angle formula, pi plus theta for 4. Very good, Amog. Amog is saying कि भाई साइन ये देखो, ये जो यहां पर डिफरेंस है, इनफैक्ट अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो साइन पाई प्लस थीटा लिखोगे, मैं साइन पाई माइनस 4 लिखता हूं, क्या आंसर होगा? व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा? इट इज साइन थीटा, साइन 4, साइन थीटा, yes. Similarly, if I write, let's say, sine 5 minus 2 pi, 5 minus 2 pi. Can you tell me what is sine theta minus 2 pi? ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, but can you solve this allied angle formula? What is sine theta minus 2 pi? It is sine theta. Very good. Because if you remember, minus 2 pi is nothing but one full rotation. This time, by 2 pi kya tha? One full rotation in anti-clockwise direction. Then what is minus 2 pi? Minus 2 pi is one full rotation in clockwise direction. Anti-clockwise, clockwise. तो थीटा माइनस 2 पाई, एक तरीके से हम थीटा में क्या कर रहे हैं, किसी एंगल में एक फुल रोटेशन ऐड कर रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्या फर्क पड़ता है? एंड दैट इज व्हाई साइन थीटा माइनस 2 पाई हैज टू बी साइन थीटा. एंड नॉट ओनली साइन थीटा माइनस 2 पाई, यू टेक एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉस, टैन, कुछ भी हो, आंसर इज गोइंग टू बी साइन थीटा. Now why I want to use this? Because this gives me sine 5. This is sine 5. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. अब बताओ कि पाई माइनस 4 अप्रोक्सीमेटली कितना है? व्हाट इज पाई माइनस 4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू? कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस समथिंग, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली बताओ? 3.14 माइनस 4, it is negative of minus 0.86, correct? And what about 5 minus 2 pi? 5 minus 2 pi बताओ, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? Negative 2 pi means what? 6.28, so minus 1.28 if I'm not wrong. Minus 1.28. Very nice. Negative sign is there. Negative sign भी है. Let's try to locate these 2 points. Minus 0.86 कहाँ पर आएगा? देखो ना, ये ग्राफ में अगर पीछे एक्सटेंड करूँ, let's call this point minus pi by 2. So minus 0.86 and minus 1.28. ये देखो, minus 1.28 will come on the right of minus pi by 2. Minus 0.86 will be even greater. You can see both angles, ये दोनों values जो x axis पर हैं, both are lying in 4th quadrant where graph is increasing. देखो ना, graph is increasing. So where do you think the value should be greater? Minus 1.28 पर बड़ी वैल्यू है या फिर 0.86 पर बड़ी वैल्यू है? किस पे बड़ी वैल्यू है बताओ? It is minus 0.86, which is corresponding to pi minus 4. So that means sine 4 is greater than sine 5. Answer to your question that how will we bring 4 and 5 in same quadrant? मैं 4 और 5 दोनों को
फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके चला आया यूजिंग पाई माइनस थीटा एंड थीटा माइनस 2 पाई फॉर्मूला, अलाइड एंगल फॉर्मूला. अमोघ, यू गेटिंग इट? अलाइड एंगल फॉर्मूले की हेल्प से हम दोनों एंगल्स को फोर्थ क्वाड्रेंट में ले आते हैं. ओके ओके, नाइस. Okay, getting back to this question, 3 sin x equal to x, 3 sin x equals to x, believe me, cannot be solved using any of the fundamentals, principles, theories which you have covered yet, or maybe you are going to cover in next 2 years. You cannot solve this equation. Yes, you can find some answer using hidden trial. तुक्के मार दिए, आंसर आ गया. फॉर एग्जाम्पल 0 उसको सेटिस्फाई करता है. यस, साइन 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है. But other than 0, are there more solutions? Yes, there will be more solutions to this equation. But वो जो solutions आएंगे, we are not interested in finding the value of those solutions. Answer क्या आने वाला है हमें उससे मतलब नहीं है. We are interested in finding the number of solutions. कितने solutions होंगे हम वो find करना चाहते हैं. And then this is another application of Parth, what did you do? Yes, I made a graph for this equation. There was three places where both the graphs meet. Very nice, Parth. So these type of questions can be solved easily using a graph. अगर मैं graph plotting आती है, तो इस type equation हम बहुत आराम solve कर सकते हैं. Listen to me very carefully. First of all, I am going to rearrange some values like sin x को मैंने x by 3 लिख दिया. sin x equals to x by 3 लिख दिया, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया. What could be the use of graph? Sin x equals to x by 3. Consider a graph of y equals to sin x. And consider the graph of y equals to x by 3. इन दोनों ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है. We already know how we will plot the graph of y equals to sin x. And I think we have covered the graph of straight line in 10th standard coordinate geometry. So y equals to x by 3 सबको प्लॉट करना आता है, सबको पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है. Why are we talking about graph? ग्राफ की जरूरत क्या है यार? Look at this equation once again. Sin x equals to x by 3 का मतलब क्या हुआ? Sin x equals to x by 3 का क्या मतलब हुआ? अगर तुम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल तभी होंगे, ये दोनों इक्वल ग्राफिकली वहीं पे होंगे जहां पर ये दोनों ग्राफ्स जिस पॉइंट पर कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, टच करेंगे. कॉमन पॉइंट्स ऑफ दीज टू ग्राफ्स, इजंट इट? भाई अगर sin x इक्वल टू x by 3 है और हम उसका सोल्यूशन निकालना चाहते हैं फॉर सेम x, आंसर इज सेम y. सेम x and same y means what? Same point. So the number of points where these two graphs will intersect will give you the solution, the number of solutions to this equation. Alright? So if you can plot these two graphs correctly, you can find your answer. चलो हम पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं sin x का. sin x का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, अभी बहुत बार प्लॉट हो चुका है, फिर से एक बार. sin x का मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, ये ऐसा कुछ गया, इधर भी प्लॉट कर लेते हैं ऐसा कुछ. ऑलराइट, 0 एंड पाई एंड फर्दर यहां पे माइनस पाई बाय 2 पॉइंट्स. सो दिस इज y equals to sin x. Danish? Yes, Danish, correct. Then we want to plot the graph of y equals to x by 3. How do you plot the graph of y equal to x by 3? ये टेबल याद है बनाते थे हम स्ट्रेट लाइन प्लॉट करने के लिए. 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, 3 रख लेते हैं बिकॉज 3 पर सॉल्व करना इजी है. 3 पर इसकी वैल्यू 1 आ रही है. इफ यू टेक -3 पर इसकी वैल्यू -1 आ रही है. 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट बिकॉज वी नो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, बट ठीक है मैंने 3 ले लिए. सो डेफिनेटली दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. 0,0 से लाइन पास करती है. वेयर इज 3 कहां पर है? देखो ना, पाई इज 3.14. 3 इज वेरी क्लोज टू पाई बट इट इज स्मॉलर देन पाई, तो उसके जस्ट पहले जो है और
वैल्यू जरा मैच कराना, ये देखो 1 है ना, 1 sin x भी होता है बट π/2 पर. So this is one point, this is origin. Another point, another crucial point is -3. Why -3 is important? Because -3 पर इसकी वैल्यू minimum value हो रही है sin x की, which is -1. So this point also. Let's join these 3 points. इनको join करते हैं. देखो, if you will join these 3 points, you will get the graph of y equals to x/3, a straight line. Now it can be easily observed कि भाई ये 3 पॉइंट्स पर साइन ऐसे ग्राफ को कट कर रहा है. ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट और ये रहा एक पॉइंट. सो वी हैव 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस. लुकिंग एट द सिमेट्री ऑफ द ग्राफ, मुझे ये नहीं पता कि ये कट कहां कर रहा है, मुझे ये सॉल्यूशन नहीं पता. लेट्स कॉल दिस वैल्यू अल्फा. बट अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूं तो मेरे ख्याल से ये सब लोग बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए. इफ दिस पॉइंट इज अल्फा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज अल्फा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट शुड बी, दानिश थ्रो, वेरी नाइस, आंसर इज -अल्फा. सो अल्फा एंड -अल्फा, करेक्ट, करेक्ट सामिल, करेक्ट हर्षिता, वेरी गुड. तो अगर मान लो इस क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, तो हमें हालांकि अल्फा नहीं पता है, but sum of all the solutions, alpha 0 minus alpha is going to be 0. That we can answer. Yes, 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 yes. So graph plotting is important, and you can see why. Because graph can solve these types of problems as well, which we cannot solve using any of the definitions, principles which you learned in trigonometry, in algebra. काम में नहीं आएगा यार. sin x equal to x/3 तुम solve नहीं कर पाओगे. बट ग्राफ की हेल्प से हम एटलीस्ट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता सकते हैं. देन लास्ट लेक्चर आई थिंक वी हैव कवर्ड द ग्राफ ऑफ cos x आल्सो. लुक एट द स्लाइड, द ग्राफ ऑफ cos x. दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, and once again the graph was plotted from 0 to 2 pi, because after 2 pi the graph is bound to repeat itself. After one rotation graph will repeat itself. तो ये ग्राफ था y equal to cos x का. कुछ चीजें जो हमने ऑब्जर्व की थी sin x में, वही चीजें हमने cos x में भी ऑब्जर्व की. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डोमेन ऑफ cos x? cos x का डोमेन क्या होगा? लुक एट द वैल्यूज इट इज कवरिंग ऑन x एक्सिस. लुक एट द सेट ऑफ इनपुट्स. सो इट विल कवर ऑल वैल्यूज ऑन x एक्सिस. cos को तुम कोई भी इनपुट दो, इट विल ऑलवेज गिव यू एन आउटपुट, राइट? cos 180 डिग्रीज, cos 3 पाई, cos 7 पाई, cos -पाई, cos -π/2, कुछ भी दोगे उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, एक रियल आउटपुट आएगा. एंड दैट्स व्हाई डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r. एंड वंस अगेन, if you look at the extremes, if you look at the two values which are the extremes on y axis, it is again -1 to 1, right? cos x is covering -1 to 1 on y axis. So what is the range of cos x? Range of cos x is -1 to 1. इसका मतलब अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे बताओ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन, cos x equals to π/2. Can you tell me an angle whose cosine will give you π/2? क्या कोई ऐसा रियल एंगल है जिसके कोसाइन की वैल्यू π/2 हो सकती है? ये थोड़ा सा आप देखो, प्लेइंग विद योर माइंड कि π/2 तो यहां होता है, वो यहां कैसे आ गया है? इतने परेशान मत हो. cos x equals to π/2 is not possible. Yes, cos x equals to π/2 cannot have a real answer. हो ही नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? Because π/2 is greater than 1. π/2, yes, π/2 is 1.5 something. तो हो ही नहीं सकता ना यार. cos हमने अभी देखा ग्राफ में कि cos का ग्राफ 1 के ऊपर जा ही नहीं सकता. तो किसी भी एंगल की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती. बट देयर इज एन आंसर टू इवन दिस क्वेश्चन. इसका भी आंसर है.
cos x इक्वल्स टू पाई बाई 2, आंसर है इसका। वो अलग बात है कि वो आंसर रियल नहीं है। cos x इक्वल्स टू पाई बाई 2 का आंसर एक इमेजिनरी एंगल है। नाउ व्हाट इज एन इमेजिनरी एंगल, व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर, दैट विल डिस्कस लेटर, है ना। अगर किसी को पता हो उन नंबर्स के बारे में, then try to find a solution to this equation as well. cos x equal to pi by 2 का आंसर क्या होगा? इंटरेस्टिंग है ना। किसी को अगर इसका आंसर मिलता है, खुद करना तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, आई बिलीव बहुत मुश्किल है, बट अगर तुम्हें कहीं से ये आंसर मिलता है तो मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। देखते हैं कि तुम्हारा आंसर कितना सही निकलता है। एनीवेज, तो ये cos x की रेंज हो गई। लेट्स डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ द ग्राफ। कहां पे ये इंक्रीज कर रहा है, कहां पे ये डिक्रीज कर रहा है। सो लुक, अब ये ग्राफ पूरा, ये हमारा प्लेन लैंड नहीं कर रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। कहां तक? 0 से पाई तक ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, देन पाई से 2 पाई तक ग्राफ फिर से इंक्रीज कर रहा है। तो इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट ग्राफ इज डिक्रीजिंग, थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट ग्राफ इज इंक्रीजिंग। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस नेक्स्ट पिक्चर में तुम देखोगे। नेक्स्ट पिक्चर में तुम्हें ये देखो 4 जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें बताए, पीरियड ऑल्सो 2 पाई हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चारों पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर पॉइंट्स हैं, बट इस बार वो टेंजेंट वाला पॉइंट नहीं है। ऑब्वियसली ओरिजिन से ये ग्राफ पास ही नहीं कर रहा है, तो टेंजेंट के बारे में इसलिए डिस्कशन नहीं किया गया। ऑलराइट, अब cos x पर बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? इन द नेक्स्ट पिक्चर let's solve some questions on y equals to cos x. You will solve these questions. You will solve these questions, and first 3 problems घर पे बैठ के आराम solve करो. But I am more interested in question number 4 and question number 5. Harshita, you want to see the previous page, okay? Wait, Arjuna. Okay, previous. Yes, this one. Okay, Amog is asking, is it possible to find the number of solutions without graph? Okay, done, Arjuna? Okay, next. Yes. Amog, your answer, look, in mathematics, answer is never no. If anybody says no in mathematics, he is doing wrong. So yes, it is possible. We can find the number of solutions to that equation also, because there are lot many methods. For example, there is a series. There is a series for sin x. You know, sin x can be expanded. Sin x can be represented in terms of a polynomial, as a polynomial. So there are other methods, but up to this level, 11th, 12th standard, 10th standard. The most basic method, सबसे fundamental method जो है वो please remove slide, वो graphical approach. So मैं तुम्हें दूसरे methods भी बताऊंगा when we will discuss calculus. At least हमें calculus 12th standard की आ जाए maths में, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दूसरे मेथड्स. यस, देयर आर मेथड्स, बट फिलहाल तुम ग्राफ से सॉल्व करो, ठीक है. सो आई वॉन्ट यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार फिर मैं दिखा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 4, we have to arrange in increasing order cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5 and cos 6. इन सभी वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए. केबीसी याद आ रहा है? कौन बनेगा करोड़पति? सबसे पहले जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लेगा उसको हॉट सीट पे बैठने का मौका मिलेगा. तो देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है. cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5 एंड cos 6. ये कोई बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है. और what is the question? Dhruv, you cannot see on the screen. Question number 5 and question number 4. देखो ना, question number 4 की बात कर रहा हूं मैं. Screen is blurred. Why screen is blurred?
No, screen was, I think Dhruv, yes. So there could be some connection issues, हो सकता है उसकी वजह से हो. फिलहाल मैं, I will read it out. Arrange in increasing order, and values are cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5 and cos 6. And then fifth question is find the number of solutions to 2 cos x equals to x. ये दो questions. So cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5 and cos 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. आई थिंक तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो मैं सीधे ग्राफ प्लॉट करता हूं. वी कैन रिमूव द स्लाइड नाउ. और अब हम लोग पहले तो हम केवल ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नो स्मार्ट वेज, हम केवल ग्राफ प्लॉट करेंगे. cos x का जो ग्राफ है, cos x का जो ग्राफ है, थोड़ा सा स्केलिंग का भी ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं. अब cos 0 1 है तो बहुत ज़्यादा आगे ना जाए. पाई बाई 2 पर ये 0 हो जाएगा, पाई पर -1 हो जाएगा, एंड देन 2 पाई पे वापस ये 1 हो गया. तो ये ग्राफ है cos x का फ्रॉम 0 to 2 पाई. मैं 0 से 2 पाई तक ही क्यों बना रहा हूं ग्राफ? क्योंकि जो वैल्यूज हमें कंपेयर करनी है वो है 1 2 3 एंड सो ऑन टू 6. And you know the last value, the greatest value is 6, which is close to 2 pi, but smaller than this. तो हमें 2 pi के आगे ग्राफ की जरूरत ही नहीं है, right? This point is pi by 2, this point is pi, and this is 3 pi by 2, and the next one is 2 pi. दानिश का आंसर आ गया भाई 615423. दानिश का आंसर है 615 and 423. ओके, विल वेरीफाई. दानिश देखते हैं आंसर सही कि नहीं सही है. सो वेयर इज 1? यस, इट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में सबका कॉस डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो 1 पाई बाई 2 के पहले आ गया 1, ठीक है. 2 हमारा पाई बाई 2 और पाई के बीच में आ गया. 3 भी वहीं पर है, 3 भी यहीं पे आ गया. 4 पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में, 4 मान लो यहां पर कहीं है. 5 ऑब्वियसली 6 के साथ 4th क्वाड्रेंट में, और 6 ये रहा. In ascending order, स्वागतम saying sir 3 4 2 5 1 6. ओके, यहां थोड़ा डिफरेंस है. 3 4 2 and 5 1 6. 5 1 6, तो यहां पर डिफरेंस है. दानिश और स्वागतम के आंसर में यहां पर डिफरेंस है. संघमित्रा is saying 3 4 2 3 4 2 5 1 6. Same answer. Okay, so 2 answers are matching now. All right, let's take a look at this graph. अब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि 3 वैल्यूज हमको पॉजिटिव दिखाई देने लग गई, राइट? 1 is in first quadrant, 5 is in fourth quadrant, 6 is in fourth quadrant, जहां पर ध्रुव is saying first one. ओहो, अरे अभी तक तो थोड़ा वेट बढ़ गया था इस पे. अब दोनों पे 2 हो गए भाई. यहां भी 2 लोग हैं और यहां भी 2 लोग हैं. ओके, अभी और देखते हैं भाई. आई नीड मोर रिस्पॉन्सेज. कम ऑन, बताओ यार, कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी दिखाई दे रही है? चलो और देखते हैं. अब ये ग्राफ देख के ही बहुत क्लियर है. हालांकि स्केलिंग का मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा नहीं है, तो हम एक बार देख लेंगे. विच वैल्यू यू थिंक इज द ग्रेटेस्ट एंड वाई? बहुत ही क्लियर सी बात है कि इस बार 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है. cos x की वैल्यू 0 पे 1 होती है. cos x की वैल्यू 2 पाई पे 1 होती है. तो जितना हम क्लोज जाएंगे, दानिश इज चेंजिंग हिज आंसर टू 615 4 2 3. ओके ओके, सो विच वन यू थिंक इज द ग्रेटेस्ट? अनडाउटेडली 6 इज वेरी क्लोज टू 2 पाई. इफ आई कंपेयर 1 विद 0, 1 और 0 के बीच का गैप देखो 1 का है,
बट 6 और 2 पाई के बीच का ये जो गैप है इट इज ओनली 0.28. इसे कहते हैं ना अच्छे, ये जो पुराने जमाने में माँ बाप बोला करते हैं अच्छे बच्चों के साथ रहिए. अच्छे बच्चों का आप जितने क्लोज रहेंगे आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे. ये क्लोज रहने का मतलब ये नहीं था कि एग्जाम में उनके क्लोज बैठ जाना है. इसका मतलब था कि जो है यू शुड बी इन गुड कंपनी, है ना. सो इफ यू विल बी क्लोज टू 2 पाई, if any point is closer and closer to 2 pi, the value is greater, right? तो 6 पर इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. 5 तो पीछे आ रहा है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू है. sin 6 is the cos 6 is the greatest. cos 6. हाँ, it's okay. All right, done. Now, which you think is greater in 1 and 5? cos 1 और cos 5? कौन सा बड़ा है, cos 1 या cos 5? एक बार फिर जो डिस्टेंस तुम मेजर करोगे वो 0 से 1 की डिस्टेंस तो 1 ही है. बट अगर तुम 5 से 2 पाई की डिस्टेंस देखो, 5 से 2 पाई की डिस्टेंस इट इज 1.28. इट इज 1. ये थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, राइट? हो गया ना. 1.28 1. कौन सा बड़ा है? Obviously next value is cos 1 and third positive value is cos 5. So 615 दोनों का सही है. 615 दोनों का सही है. Swan is saying 615 and 243. Okay, so we have one more vote for second option. देखते हैं. cos 6, cos 1, cos 5. अब कंपेयर करते हैं 2, 3, 4 को. अब मेरे ख्याल से 2 और 4 बाद में आते हैं. 3 बैड गाय. देखो भाई 3 काफी क्लोज है पाई के, और पाई वो पॉइंट है जहां पर कॉस अपनी सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो अटेन कर रहा है, -1. नाउ इवन आई थिंक 2, 4, 3. दानिश ओके, अभी देख लेते हैं, डोंट वरी. तो ये तो कंफर्म है कि cos 3 इज द लीस्ट वैल्यू. cos 3 जो होगा उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा बिकॉज इट इज क्लोजर टू पाई, बट नेगेटिव है ना, तो इट विल बी वेरी क्लोज टू -1. वेरी स्मॉल वैल्यू. बट व्हाट अबाउट 2 and 4? एक बार फिर 2 और 4 में भी जो ज्यादा क्लोज होगा वो उतना ही छोटा होगा बिकॉज उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और नेगेटिव. सो तुम्हें बस ये चेक करना है कि इसमें से क्लोज कौन सा है. इट इज 2 और 4. तो ये जो कंफ्यूजन है वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. विच यू थिंक इज क्लोजर टू पाई, 4 और 2? ऑब्वियसली 4 इज क्लोजर. व्हाई? बिकॉज पाई इज 3.14. यस, इफ 4 इज क्लोजर, अगर 4 जो है उसके क्लोज है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर जो नेक्स्ट वैल्यू आनी चाहिए, रिमेंबर मैंने स्केलिंग प्रॉपर नहीं की थी तो ग्राफ देखकर नहीं बताना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. अगर 4 इसके क्लोज है तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, राइट? जस्ट लाइक 3. सो नेक्स्ट वैल्यू शुड बी 2 एंड देन 4 एंड देन लास्ट में आना चाहिए 3. सो इट इज 615, 243, मेजॉरिटी विंस. कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं. 2 और 4 होता है. 2 और 4 बस तुम्हें ये देखना है. देखो ना 2 and 4, 2 और 4 का एवरेज क्या है? 3. बट पाई किधर है? पाई एवरेज के राइट में है, तो जो राइट वाला पॉइंट है वो पाई के क्लोज है ऑब्वियसली, तो 4 पर उसकी वैल्यू कमी आनी है ना. गुड वर्क, वेरी गुड वर्क, वेरी नाइस. एंड जस्ट वन मोर प्रॉब्लम. फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू 2 cos x इक्वल्स टू x. कम ऑन, जल्दी से ग्राफ प्लॉट करते हैं. अमोग इज सेइंग 2. अच्छा, अमोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा, उसमें तुम्हें 2 ग्राफ्स प्लॉट करने हैं. एक है y इक्वल्स टू cos x, और अब मेरे ख्याल से समझ में आने लग गया होगा कि इफ आई टेक cos x देन द अदर ग्राफ विल बी y इक्वल्स टू सिंपली x by 2. सो तुम्हें ग्राफ प्लॉट करने हैं y इक्वल टू cos x और y इक्वल्स टू x by 2 के. ये दोनों ग्राफ में cos x मैंने बनाया ही था, cos x दोबारा बना लो. cos x का जो ग्राफ होगा
कहां तक ग्राफ बनाया जाए, है ना? अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, दानिश इज सेइंग 2 सॉल्यूशंस, अमोक 2 सॉल्यूशंस, एवरीबॉडी इज सेइंग 2 सॉल्यूशंस, ओके नाइस। कहां तक ग्राफ बनाया जाए, तो एक बार फिर देखो यहां पर एक क्रूशियल पॉइंट है 2। व्हाई 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट? लुक, दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, ये पाई है, 2 कहीं यहां पे आएगा। व्हाई 2 इज इंपॉर्टेंट? 2 इज इंपॉर्टेंट बिकॉज 2 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, राइट? If you put x equal to 2, y equals to 1. Similarly, if you put x equals to minus 2 देखो यहां कहीं आ गया। Why minus 2 is important? Because minus 2 पर y equal to x by 2 minus 1 हो जाता है। And both points are extremities of the range for cos x. Cos x 1 के ऊपर जा नहीं सकता, cos x minus 1 के नीचे जा नहीं सकता, तो सोल्यूशन अगर मिलने की कोई उम्मीद है तो वो यहीं पर है। Now everyone is saying 2 solutions. Okay. If I join these 2 points, अगर मैं origin भी एक point है obviously, इनको join करूं, one clear point of intersection, आगे मिलेगा नहीं because ये line 1 के ऊपर चलेगी। But अगर मैं इधर आ रहा हूं, अगर मैं यहां से पीछे आता हूं, डू यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लाइन cos x को कट करेगी कहीं पर? डू यू थिंक इट इज पॉसिबल? हाउ आर यू गेटिंग 2 सॉल्यूशंस? Suhani is saying yes. Suhani, remember, we have this point minus 2 because at minus 2 x by 2 becomes minus 1, and अगर मैंने इसके आगे ग्राफ बनाया, this line will go below minus 1. cos x minus 1 के नीचे नहीं जा सकता है। What do you think? This line should, must, may not be, क्या है तुम्हारे रेस्पॉन्सेज, ये बताओ मुझे। क्योंकि अब मैंने डायग्राम एक्यूरेट बनाया या नहीं बनाया, आई कैन नॉट से, बिकॉज ग्राफ में इतनी एक्यूरेसी नहीं है अभी। मैंने केवल रैंडमली कुछ वैल्यूज प्लॉट किए हैं। यस, -2 -पाई से पहले आएगा, ये बात तो कंफर्म्ड है, बट क्वेश्चन ये है कि इट कैन नॉट टच। आर यू आस्किंग और टेलिंग मी why it will not intersect, it cannot touch? That means there is only one solution. You agree? तुम बोल रहे हो कि एक ही solution आएगा। Okay. Why it cannot touch? ये touch भी क्यों नहीं कर सकता? How will you prove ये touch नहीं कर सकता? ये चीज हमें अगर प्रूव करनी हो तो कैसे प्रूव करोगे कि ये टच भी नहीं कर सकता? I'm all ears. बताओ। दिस इज ट्रिकी। ये सोचना, भाई मैंने जिस तरह ग्राफ बनाया है उसमें दिख रहा है कि ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बट हो सकता था ना ये कर्वेचर में थोड़ा सा ऐसा बनाऊं जिसको टच करके निकल जाए, यहां पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके निकल जाए। तो ग्राफ, इफ यू हैव डेस्मोस, कैन यू चेक? डेस्मोस पे कोई चेक करेगा? है किसी के पास? अपनी डेस्मोस ऐप पे cos x और x by 2 दोनों फंक्शन से ग्राफ प्लॉट करो और देखो। हर्षिता, चेक इट। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y equal to cos x and plot the graph of y equals to x by 2. So first you verify y will be -1 but x will not match. नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब है x as well as y both must match ना। So plot the graph on Desmos now. Can you please write the name of the app? Okay, Desmos. So जब लिख दीजिए उसमें DESMOS. Harshita is saying 2 solutions. ये देखो भाई, Harshita, is it showing on Desmos? Now this is getting interesting. अभी इंटरेस्टिंग और हो गया भाई। Okay. Desmos पे 2 solutions दिखा रहा है यार, ये कैसे हो रहा है? जबकि मैंने जो ग्राफ बनाया उसमें तो एक ही सोल्यूशन दिख रहा है।
सो कैन यू थिंक ऑफ अनदर पॉसिबिलिटी? चलो एक बार फिर यहां पर इसको डिस्कस करते हैं, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन नेगेटिव पार्ट। और इस बार मैं थोड़ी सी स्केलिंग का भी ध्यान रखता हूं। ये 0 हो गया है ना, पाई ले लेते हैं यहां पर, पाई पर इसकी वैल्यू -1 है, π/2 पर ये 0 होगा। और फिलहाल हम पॉजिटिव पार्ट में थोड़े भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है चलेगा। नेगेटिव पार्ट में जाता है, सॉरी, ये रहा। तो ये रहा cos x का वो ग्राफ, पाई पर इसकी वैल्यू -1 हो गई है, π/2 पर इसकी वैल्यू 0 हो गई है, और ये नेगेटिव एंगल्स हैं तो -π और -π/2। अब -2 लोकेट करते हैं, थोड़ा सा एक्यूरेसी रखते हैं, -1.57 -3.14, तो इट शुड बी वेरी क्लोज टू, आई मीन कंपेयरिंग टू -π, ये थोड़ा क्लोज होना चाहिए -2 के यहाँ पर। एंड -2 इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज -2 पर y = x/2 जो है उसकी वैल्यू -1 हो जाती है। अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूं, डू यू थिंक ये ग्राफ, ये लाइन y = cos x को इंटरसेक्ट करेगा? अगर डेस्मोस पे ऐसा दिखा रहा है तो इट इज, आई डोंट थिंक ऐसा हो सकता है, नॉट पॉसिबल यार। व्हाट आर यू सेइंग नाउ? ऑन डेस्मोस इट इज ओनली यस, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तुम देखो ना, -2 पर इसकी वैल्यू -1 है और इसकी वैल्यू डेफिनेटली थोड़ी बड़ी होगी इससे। नाउ इफ यू गो टू एनी पॉइंट विच इज ग्रेटर देन -2, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, बट इसका जो इंक्रीमेंट रेट है वो कहीं ज्यादा है इस लाइन से, तो इंटरसेक्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, इंटरसेक्शन नहीं है। बट मैंने इसलिए इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम्हें ये पॉइंट अगर -π के पहले मिल गया तो हमेशा सोल्यूशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लाइन में ओरिजिन से ड्रॉ करूं जो इस ग्राफ को टच करते हुए निकल जाए, ये पॉइंट देखो -π से पहले ही आएगा, बट दिस टाइम वी विल हैव वन मोर सोल्यूशन, इट इज पॉसिबल। तो ये पॉइंट हमको चेक करना पड़ेगा, ये चीज हमको फिर ग्राफ में चेक करनी पड़ेगी, वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग, टचिंग, और ये चीज अभी हम चेक नहीं कर सकते हैं। फिलहाल y = x/2 के केस में ये चीज, थोड़ा भी ग्राफ अगर तुम एक्यूरेटली बनाओगे ये चीज क्लियर है कि ये ग्राफ को कट नहीं करेगी। बट अगर हम इस ग्राफ को आगे एक्सटेंड करें, यानी अगर मैं इधर ले जाऊं इसको π/2 की तरफ और इस लाइन को एक्सटेंड करूं, तो अब डेफिनेटली इसको कट करना चाहिए। सो वी हैव ओनली वन सोल्यूशन फॉर व्हाट? cos x equals to x/2, यानी 2 cos x equals to x। ऑलराइट, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया, टेंजेंट्स ग्राफ के कैसे उनकी इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे कैलकुलस में। सो दैट्स इट, है ना? इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ग्राफ के बारे में तूने पढ़ लिया, तुमने 10th की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर ली, एंड ट्रस्ट मी, जो पार्ट हमने कवर किया इट इज द पार्ट विच इज यूजुअली अवॉइडेड। लोग उसको नहीं करते हैं कवर, और इसलिए हमको बेसिक्स इस चैप्टर के कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। ग्राफ प्लॉटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंगल्स इन रेडियंस यू शुड बी कंफर्टेबल विद। सो व्हेन आई से cos 1 cos 2 दिमाग में आना चाहिए, फिगर आउट होना चाहिए किन वैल्यूज की बात हो रही है ना? वी कैन स्टॉप द